Introduction to probability theory. We have already discussed about what is probability, the basics of probability and all. The concept of probability has already been explained to you, right? So now I'm moving to introduction to probability theory. The statistician is basically concerned with drawing conclusions or inferences from experiments involving uncertainty. We all are aware that whoever is the statistician, why the investigator or the statistician used to collect data and then investigate and then analyze, in-depth analysis is done simply in order to take certain decision making. And now whatever the decision making is based on drawing certain conclusions. So whatever we take decisions are basically the conclusions drawn or the inferences. So inferences from what? Inferences from the experiments. And this means whatever inferences we are actually taking, whatever we are forecasting, it involves uncertainties, because I am predicting, I am forecasting as with regard to the current situation. But tomorrow is definitely uncertain. We are not sure about the probability, what will happen tomorrow. For this conclusions and inferences to be reasonably accurate, an understanding of probability theory is essential. That means for coming to a conclusion, that means you undertook an experiment or you undertook a survey, and then from there you have to infer a proper you have to make your point clear, understand the concept, and think about the future, the decisions to be taken and all, right? So for this conclusions and inferences to be reasonably accurate, an understanding of probability theory is essential. So we have to understand the probability theory in details. Fine. So in this section, we shall develop the concept of probability with equally likely outcome. First thing, we'll understand the equally likely outcome. Experiment, sample, space and event. These are certain terminology that we will use. Experiment. This is any process of observation or procedure that can be repeated an infinite number of times and has a well-defined set of possible outcomes. See, normally experiment means what? It is an operation that produces certain outcome. Experiment, we are doing something. We are undergoing certain operations, right? Which will produce certain outcomes. Simply, if I experiment something, so I'm trying something out, so I'll get a certain observation from the same, I'll infer something from it. In other words, experiment is an act which can be repeated under some essential homogeneous conditions. An experiment is called a random experiment if and when conducted repeatedly under a given conditions gives results which depends on chance. See, random experiment कब बोलेंगे हम? रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब मैं बार बार सेम कंडीशन में एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ एंड आई एम गेटिंग द सेम रिजल्ट, दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है. देन another is sample space. This is a set of all possible outcomes of an experiment. So sample space simply means a set of this is a set of all possible outcomes of an experiment. यहाँ पे experiment के sample space की बात हो रही है. तो एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस सिंपली उस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं उसको बोल रहे हैं. ठीक है. इवेंट इज the subset of a sample space of an experiment. Event is actually the outcome. Event का मतलब होता है outcome. आउटकम और इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. तो हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, द ऑपरेशंस थ्रू विच वी आर गोइंग थ्रू, उसका कुछ ना कुछ तो आउटकम निकलेगा ही. तो आउटकम या रिजल्ट जो है उसको हम बोलते हैं इवेंट. एन इवेंट इज अ रैंडम इवेंट व्हेन इट मे और मे नॉट ऑकर व्हिल परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. फाइन. ये हुआ. सपोज एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे दिया हुआ एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टॉसिंग अ कॉइन. सैंपल स्पेस, यहाँ पे सैंपल स्पेस हमारे क्या है, दैट इज पॉसिबिलिटीज, क्या क्या हो सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट के, पॉसिबिलिटीज क्या होंगे, रिजल्ट का पॉसिबिलिटी क्या है. सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू हेड और टेल. दो हो सकता है, हेड और टेल. और वी कुड राइट एस इज इक्वल्स टू 0 and 1, where 0 represents a tail and 1 represents a head. हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं. सैंपल स्पेस में क्या आ गया, हेड और टेल. देखो ये ब्रैकेट में दिखा रहा है सैंपल स्पेस, हेड और टेल. सो वी आर राइटिंग एस इज इक्वल टू 0 and 1. 0 बता रहे टेल को, 1 बता रहे हेड को. ठीक है.
So experiment number 2, tossing a coin twice. तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या हो रहा है, अभी एक ही कॉइन को दो बार जब आप करते हो तो क्या होगा, सैंपल स्पेस कितना हो गया, हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, ऐसा हो सकता है ना। सैंपल स्पेस व्हेन टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, मतलब पहली बार में हेड हुआ, दूसरी बार में भी हेड हुआ, पहली बार में टेल हुआ, दूसरी बार में भी टेल हुआ, इस तरीके से पहली बार में हेड हुआ, दूसरी बार में टेल हुआ, पहली बार में टेल हुआ, सेकेंड टाइम में हेड हुआ, इस तरीके से हो सकता है ना। Some possible events, E1 is head, E2 is tail and E3 is equals to all heads. तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, इवेंट जो आउटकम जो वो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइदर हेड या टेल या ऑल हेड्स, कुछ भी हो सकता है, हेड टेल और ऑल हेड्स। देखो इसी तरीके से यहाँ पे है एक्सपेरिमेंट नंबर 3, थ्रोइंग अ डाई। आप अगर डाई से जो होता है ना लूडो की गोटी, वो अगर भेजते हो फेंकते हो, क्या आ सकता है, सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 और एस इज इक्वल्स टू इवन और ऑड, कुछ भी हो सकता है। सैंपल स्पेस टोटल कितना है, 6 ही तो रहता है ना, 6 फेसेस। एक वो जो गोटी रहती है, क्या मतलब डाइस जो रहता है, डाइस का कितना स्पेस ये रहता है, साइड फेस कितना रहता है, 1 2 3 4 5 6 6 स्पेसेस रहता है। और वी कैन से सैंपल स्पेस इज इक्वल टू आइदर इवन होगा या ऑड होगा, मतलब यहाँ 1 आएगा इवन, सॉरी ऑड, 2 आया इवन, 3 आया ऑड, इस तरीके से। सम इवेंट्स, इवन नंबर कितना हो सकता है, E1 इज इक्वल्स टू 2 4 6, ऑड नंबर आ सकता है 1 3 5, द नंबर 1 E3, अब देखो नंबर 1 E3 इज इक्वल्स टू 1, एटलीस्ट 3 E4 इज इक्वल्स टू, देखो अब यहाँ पे बता रहा है नंबर 1, अगर 1 अगर आता है, हमने चाहा कि नंबर 1, सो E3 ये भी एक इवेंट है, E3 इज इक्वल्स टू 1, एक ही चांसेस है 1 का, एंड एटलीस्ट 3, अब मैं बोल रही हूँ एटलीस्ट 3 आए, तो उसके लिए क्या, मतलब वो भी दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ इवेंट ना, उसमें क्या क्या चांसेस है, एटलीस्ट 3 में 3 तो आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, एटलीस्ट 3 मीन्स 3 और मोर देन 3, ठीक है। जैसे नंबर वन इज ऑल्सो एन इवेंट, अगर हमको नंबर 1 ही चाहिए तो E3 क्या हम लोग ले रहे हैं, सैंपल स्पेस में ओनली 1, 1 इज ओनली अवेलेबल, और एटलीस्ट 3, दिस इज अनदर केस, यहाँ पे हम इवेंट 4 को दिखा रहे हैं, सो दैट टाइम वी कैन टेक 3 4 5 6, ठीक है। नाउ एक्सपेरिमेंट 4, दैट इज डिफेक्टिव आइटम्स। Two items are picked one at a time at random from a manufacturing process, and each item is inspected and classified as defective and non-defective. देखो, two items are picked one at a time at a random from manufacturing process. मैन्युफैक्चरिंग, कहीं पर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, वहां से रैंडमली मैंने दो सामान उठा लिए, वन एट अ टाइम, एक पहले उठाया, सेकंड दूसरा बार उठाया, ठीक है, और रैंडमली उठाया अचानक से, एंड ईच आइटम इज इंस्पेक्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। अब ये आइटम को हम इंस्पेक्ट करेंगे एंड देन दिस विल बी क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या होगी, एन एन मतलब नॉन डिफेक्टिव, एन डी डी एन डी डी, कुछ भी हो सकता है। सो E1 को अगर मैं इवेंट ले रही हूँ, ओनली वन आइटम इज डिफेक्टिव, E2 को मैं ले रही हूँ बोथ आर नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। E3 E4 भी हो सकता है सर, यहाँ पे E1 लिया है ओनली वन आइटम इज डिफेक्टिव, और E2 लिया है बोथ आर नॉन डिफेक्टिव, और मैं अगर E3 लेना चाहूँ बोथ आर डिफेक्टिव भी ले सकती हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट किसको बोलते हैं, सपोज एन इवेंट E can happen in R ways out of total n possible equally likely ways। अब देखो यहाँ पे सीधा हम लोग फॉर्मूला में आ गए हैं, ज्यादा इसमें नहीं गए हम लोग, वी हैव अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी, द थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑल्सो, यहाँ पे डायरेक्टली थियोरेटिकल एस्पेक्ट जो है उसमें अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्लासिकल और प्रायोरी प्रोबेबिलिटी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, सब्जेक्टिव अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये सब है। मैं थ्योरी वाला नहीं पढ़ा रही हूँ अभी, जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रूल्स है मैं डायरेक्टली उसको पढ़ा दे रही हूँ, बाद में थ्योरी पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, सपोज एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज अ नंबर असाइन्ड टू द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इन अ सैंपल स्पेस
मतलब क्या बता रहा है, मैं उस इवेंट में मेरे क्या चांसेस हैं। तो यहाँ पे जैसे फॉर्मूला दिया डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सपोज एन इवेंट कैन हैपन, एक इवेंट है जो हो सकता है इन आर वेज आउट ऑफ टोटल एन पॉसिबल इक्वली लाइकली वेज। क्या बता रहा है, सपोज एन इवेंट ई कैन हैपन, कोई इवेंट है ई कैन हैपन, यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन, दिस ई कैन हैपन इन आर वेज। अब तुम दो तरीके से एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ऑनलाइन में भी दे सकती हो, ऑफलाइन में भी सकते हो, इन आर वेज आउट ऑफ टोटल एन पॉसिबल वेज। अच्छा, ई कैन हैपन, तुम्हारा एग्जाम कैन हैपन इन आर वेज, दो या तीन तरीके से, या एक तरीके से, तुम एक तरह से एग्जाम दे रही हो ऑफ अ टोटल ऑफ एन पॉसिबल इक्वली लाइकली वेज। सपोज तुम्हारे पास 4 वेज है गिविंग एग्जामिनेशन, then the probability of occurrence of the event call its success is denoted। अब देखो probability of occurrence of the event, मेरा जो प्रोबेबिलिटी है कि ई जो होगा, इवेंट जो होगा, सक्सेस होगा, इज डिनोटेड बाय PE, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय N। सिंपली दिस इज द फॉर्मूला, R वेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, जैसे हमने करा था ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, NPR NCR, यहाँ पे क्या है R बाई N। क्लियर है? यस मैम। चलो नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ द इवेंट कॉल इट्स फेलियर इज डिनोटेड बाय। अब कोई चीज होगी तो हमने ऊपर देखा, कोई चीज नहीं होगी, नॉन ऑकरेंस ऑफ द इवेंट, उसको हम कैसे दिखाएंगे, पी ई के ऊपर ऐसे बार दिखाते हैं हम लोग, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर बाई एन। देखो टोटल चांस है हमारा 1, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू आर बाई एन, तो नॉन ऑकरेंस होने का चांसेस ये है, 1 है तुम्हारा टोटल, 1 इज योर टोटल, टोटल में से इतना अगर सक्सेस का चांस है तो फेलियर इज सिंपली 1 माइनस आर बाई एन होगा ना, होगा तो 1 माइनस आर बाई एन। हाँ, notice the bar above the E indicating the event does not occur, thus probability of not happening an event plus probability of happening an event is equals to 1। होगा या नहीं होगा, दोनों मिला के इक्वल्स टू 1 होगा ना। सपोज 50% केक तुमने खा लिया, 50% बचा हुआ है, तो दोनों मिला के टोटल इज इक्वल्स टू 1 ना। यस मैम। In words this means that the sum of the probability in any experiment is equals to 1। इसका मतलब तुम अगर sum of probability करोगे तो that is equals to 1। ठीक है, देखो definition of probability using sample spaces। When an experiment is performed, we set up a sample space of all possible outcomes। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, हम लोग एक सैंपल स्पेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, in a sample of n equally likely outcomes। अब यहाँ क्या बता रहे हैं, in a sample of n equally likely outcome, मेरे पास एक सैंपल है जहाँ पे n नंबर है, कुछ भी 5 हो 10 हो एनीथिंग, वो इक्वली लाइकली आउटकम है, मतलब कुछ भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, इस तरीके से we assign a chance or a weight of 1 by n to each outcome। जैसे 50% तुमने खा लिया, 50% रख दिया, दोनों का इक्वली लाइकली आउटकम है, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, तो क्या हम करेंगे 1 by 50 करते हैं, ये 50% बोलते हैं ना हम लोग, तो क्या करते हैं 50/100 तो इसका मतलब क्या, टोटल 100% है, 100 में 50/100 करते हैं, तो सिंपली यहाँ पर 1 by n कर रहे हैं। So we define the probability of an event for such a sample as follows। The probability of an event E is defined as the number of outcomes favorable to E divided by the total number of equally likely outcomes in the sample space S of the experiment, that is probability of E is equals to NE divided by NS। तो मतलब क्या है, NE क्या बता रहा है, that is favorable कितना होने का chances है, divided by टोटल नंबर, मतलब टोटल में ये क्या है, टोटल है, टोटल में फेवरेबल का चांसेस कितना है, वही रिप्रेजेंट कर रहा है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 and less means greater than equals to 0 and less than equals to -1। In other words, this means the probability of an event must be a number between 0 and 1 inclusive। तो probability की जब हम बात करते हैं, अगर 1 है मतलब वो 100% है, तो 100% जब है, I am sure that time I don't have to say something probable।
व्हेन आई एम श्योर आई एम क्लियर, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया तो आई एम वेरी श्योर मेरा 100% आ गया, तो इसमें प्रोबेबिलिटी की कोई बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी कब होगी? इम्पॉसिबल और हो सकेगा कि नहीं, फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बीच में वन, बट व्हेन आई एम सर्टेन। प्रोबेबिलिटी कब होती है? सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बीच में आप लटक रहे हो, ऐसा है ना। अगर आप 100% श्योर हो, दैट इज वन। तो प्रोबेबिलिटी का एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है दैट इट विल लाई इन बिटवीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू -1। ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स इज 0। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज इक्वल्स टू 1। What is the probability of getting an ace if I choose a card at random from a standard pack of 52 playing cards? यहाँ क्या बता रहा है कि मुझे एस कितना मिल सकता है if I choose a card from a standard pack of 52 playing cards. ठीक है। तो in a standard pack of 52 playing cards we have, ये देखो हमारा ये कार्ड इस तरीके का रहता है, दो ठो मतलब इस तरह का हमारा कार्ड का ये रहता है पैटर्न, दो दो ऐसे है, तीन तीन ऐसे करके रहता है। सो देखो यहाँ पे 4 एसेस है, यहाँ पर 4 एसेस इन अ नॉर्मल पैक। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 52। ठीक है। मुझे कुछ बुक से सम्स देने होंगे क्योंकि यहाँ बहुत इजी से सम्स हैं, इतना इजी भी सम्स नहीं आएगा एग्जाम में।